السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پشاور موڑ کے مقام پر جہاں آزادی مارچ اس وقت جاری ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے آزادی مارچ کے شرکاء بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ جو ان کا ابھی تک کا یہ جو سفر ہے آزادی مارچ کا وہ کتنا کامیاب رہا۔ کل تھوڑی سی کنفیوژن بھی تھی اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان، میڈیا میں کنفیوژن پائی جا رہی تھی کیونکہ کچھ جو قائدین تھے پارٹیز کے وہ یہاں پہ پہلے آ گئے تھے، لیکن جو مولانا فضل الرحمان جن کی مین کال ہے، جن کی کال کے اوپر اور وہ لیڈ کر رہے ہیں اس آزادی مارچ کو، وہ کافی دیر رات گئے یہاں پہ پہنچے، تو وہ کنفیوژن بھی تھی۔ تو ان سے بھی جانیں گے اس حوالے سے اور شرکاء سے بھی جانیں گے کہ آگے ان کے اندر کتنا جذبہ ہے، ان کے مطالبات کیا ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہ ایک مین مطالبہ عمران خان کے استعفے کا لے کے آئیں، کیا انہیں امید ہے کہ عمران خان یا حکومت اس طرف توجہ دے گی یا عمران خان صاحب استعفیٰ دیں گے، اور کیا وہ گورنمنٹ کے اوپر اتنا پریشر ڈال سکیں گے کہ وہ اپنے جو مطالبات ہیں ان کو منوانے میں کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کس جگہ سے آئیں اور آپ کا تعلق کس جماعت سے؟ میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، میں بلوچستان سے آیا ہوں، تحصیل حب سے۔ اچھا، تو یہ آزادی مارچ میں کب سے شامل ہیں، کہاں سے آپ نے سفر شروع کیا اپنا؟ 27 اکتوبر سے جب سے ہمارے قائد نے اعلان کیا ہے اسی وقت سے ہم گھروں سے نکلے ہیں، اور آج ہمارا چھٹا دن ہے، ہم لوگ اسلام آباد میں پہنچے ہیں۔ اچھا، آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آزادی مارچ میں شریک ہونے کا آپ کا مطالبہ کیا ہے، کیوں شریک ہوں اس میں، تو آپ کیا؟ ہمارا مطالبہ دو ہیں، ایک عمران خان استعفیٰ دے دے یا خودکشی کر لے، ہمارا جان چھڑائے، بس ان دو باتوں کے علاوہ ہم کسی اور ایک بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ تو کسی صورت نہیں دیں گے چاہے جتنی دیر بیٹھے رہیں، تو کیا مولانا صاحب یہاں پہ آپ کو اگر آپ کو بیٹھنا پڑ جائے، یہاں پہ دھرنا دینا پڑے یا یہاں پہ رہنا پڑے تو تیار ہیں اس کے لیے؟ ہم اپنے قائد کے حکم کے منتظر ہیں، جو بھی ہمیں حکم دیں گے ہم انشاءاللہ 2 مہینے 3 مہینے 1 سال تک بھی ہم یہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارے ڈیپینڈ کرے گا ہمارے قائد کے حکم پر، وہ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اپنے جانوں کے نذرانے بھی اس کے لیے پیش کریں گے، اور وہ جو بھی حکم کریں گے ہم اس کے لیے انشاءاللہ تیار بیٹھے ہیں، اور اسی کے حکم کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی موجود ہے، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے اور ان کا تعلق یقیناً جمعیت علماء اسلام سے ہے، انہوں نے جھنڈا بھی اٹھا رکھا ہے، تو آئیے ان سے بات۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے آئیں؟ جی، ضلع چکوال تحصیل چور سے شاہ سے آیا ہوں۔ اچھا، ایک چیز جو اس دھرنے کے حوالے سے ہم نے ابھی تک محسوس کی کہ کراچی سے چلا، بہت پرامن تھا، لاہور میں رہا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ میٹرو چل رہی تھی، مطلب اتنا پرامن رہا، یہ اس کی پازیٹیو چیز ہے ناظرین، اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کل سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت پرامن طریقے سے ہے۔ تو اس حوالے سے آگے بھی ہم امید رکھیں گے کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی گڑبڑ بھی ہوتی ہے تو آپ اپنی یہ جو پرامن ایک فیس ہے اس دھرنے کا وہ جاری رکھیں گے اسی طریقے سے؟ انشاءاللہ الحمدللہ ہم مدارس میں پڑھ چکے ہیں، اساتذہ نے ہمیں تربیت دی ہے، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے یہیں پہ نظم و ضبط کے طریقے سے انشاءاللہ یہیں پہ رہیں گے، رہائش پذیر ہوں گے، مرتے دم تک یہیں پہ رہیں گے، یا سلیکٹڈ وزیر اعظم یہیں سے استعفیٰ دے کر۔ ہمیں تو ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم ایک قائد سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے قانون رائج کر دے کہ کوئی وزیر اعظم سلیکٹڈ ہو اس کو پھانسی دیا جائے۔ اچھا، تو اگر آپ کو یہاں پہ جیسے بھائی نے بات کی تھی کہ کچھ عرصہ زیادہ دن تک رہنا پڑے، تو کیا آپ کے پاس انتظامات ہیں؟ اگر ہفتہ رہنا پڑے، 2 ہفتے رہنے پڑے، حکومت اپنے آپ کے جو مطالبات ہیں ان کی طرف توجہ نہ دے یا ان کو سیریس نہ لے، تو اس حوالے سے انتظامات ہیں؟ کس طریقے سے آپ یہاں پہ مینیج کریں گے، کس طرح سے رہ سکیں گے؟ الحمدللہ وفاق حکومت نے یہ پہلے بھی اعلان کیے ہیں کہ مثلاً ٹرانسپورٹ نہ دیا جائے اور تیل نہ دیا جائے، راشن نہ دیا جائے۔ الحمدللہ ہم نے ساتھ ہی ڈیزل، تیل، اسی طرح جتنے بھی راشن ہیں اور جو رہائش کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں الحمدللہ ہم نے ساتھ لے کے، خیمے لے کے، بسترے لے کے، سر پہ کفن باندھ کے لے کے آئے یہاں تک انشاءاللہ۔ جی، تو ناظرین کا کہنا ہے کہ سر پہ کفن باندھ کے نکلیں، اور جتنے بھی دن ان کے قائدین ان کو کہیں گے یہاں پہ وہ موجود رہیں گے، اور اپنے قائد کا جو بھی ان کا ایک لائحہ عمل ہوگا اس کے مطابق یہ آگے بڑھیں گے اور ان کے ساتھ یہاں پہ موجود رہیں گے۔ آئیے ناظرین مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور جو دیگر پارٹیز ہیں یہاں سے اگر ان میں کوئی ہو تو ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی، تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک مسلم لیگ کے کارکن بھی موجود ہیں، انہوں نے جھنڈا بھی لپیٹ رکھا ہے، آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس مارچ میں شریک ہیں اور ان کے کیا تاثرات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا آئے کہاں سے، آپ کس جگہ سے؟ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور میں رہتا ہوں اسلام آباد سے ہوں، I-10 سے آیا ہوں۔ اچھا، تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ مارچ میں، آزادی مارچ میں شریک ہیں، تو آپ کا مطالبہ کیا ہے بیسک، اگر میں ایک لائن میں آپ سے پوچھنا چاہوں؟ ہمارا مطالبہ استعفیٰ لینا ہے اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجنا ہے، اچھا، اور
हमारे कायद का ऐलान और मौलाना फजल रहमान साहब का ऐलान है, इस हुकूमत से जान छुड़वानी है। और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये नाअहल और नालायक हुकूमत है और इसको घर भेजना है। लेकिन सर अगर आप तो चूँकि इस्लामाबाद से ही हैं, आपको तो पता होगा, ये तो इस्लामाबाद का बिल्कुल एक कॉर्नर पे आपको गवर्नमेंट ने जगह दी है इसके लिए। तो यहाँ पे तो अगर एक महीना भी बैठे रहे तो पूरे शहर को तो कुछ भी नहीं होना। तो अगर हुकूमत आपके मुतालबों की तरफ नहीं तवज्जो देती तो यहाँ पे बैठने से तो यकीनन जिस तरह होता है शहर ब्लॉक होना या ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एक बिल्कुल कॉर्नर है शहर का। आप इस्लामाबाद को बेहतर जानते होंगे, आप इधर ही रहते हैं। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि हुकूमत तो जो नहीं देती, आपको सीरियस नहीं लेती, न धरने को न धरने के मुतालबात को, तो फिर क्या आप जो आपके कायदीन हैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं अगर वो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कॉल देते हैं? इंशाअल्लाह हम चाहे मौलाना फजल रहमान के हैं, नवाज़ शरीफ साहब का हैं, शहबाज शरीफ साहब का हैं, ये 5 साल बैठे हैं, 2 साल बैठे हैं, साल बैठे हैं, हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और हम रात तक जाएंगे इनके साथ। और हमारा मुतालबा यही है कि वज़ीर आज़म को घर भेजना है और ये पूरी कबीना मुस्तफ़ी होनी चाहिए। और कल जो रेलवे का हादसा हुआ है हम उसकी भी शदीद मज़म्मत करते हैं और वज़ीर रेलवे को भी फौरी इस्तीफ़ा देना चाहिए। जी तो नाज़रीन, इनका कहना ये है कि पूरे इनका जो मुतालबा है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान न सिर्फ ख़ुद मुस्तफ़ी हों बल्कि उनकी काबीना भी मुस्तफ़ी हो। और फिर उन्हें कल ट्रेन से आने का भी जिक्र किया कि उसकी भी ज़िम्मेदार हुकूमत है और वो मुतल्लिका जो वज़ीर हैं यानी शेख रशीद साहब उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये हमारे साथ एक और भी दोस्त मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर किस जगह से आए और कौन सी जमात से ताल्लुक़ है? हमारा तारुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से, हम सूबा सिंध ज़िला कश्मीर से आए हैं और इस अज़म से आए, ये जमीयत उलमा इस्लाम के काज नहीं पूरी आवाम का काज है। ये एक झूठा वज़ीर आज़म जो हर दिन हर रात उठते बैठते झूठ बोलता है और तज़लील करता है, जिसको गैरत का नाम का पता ही नहीं को गैरत होती क्या है। ये लोगों का जीना हराम कर दिया है। मज़दूर हो, किसान हो, डॉक्टर हो और उस्ताद महज़ब तरीके के लोग हो, इसके जो कैबिना में वो सारे लगते हैं, उनको गैरत का पता नहीं है। इतना बदअखलाक हुक्मरान कहीं नहीं आपको नजर आएगा। अच्छा सर, मैं एक आपका ताल्लुक़ सिंध से है और यहाँ पे आज़ादी मार्च में तो आपके साथ पीपल्स पार्टी भी है और वहाँ तो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो क्या आप उनको इल्ज़ाम नहीं देते वहाँ के जो भी मसाइल हैं उनके, वो तो यहाँ पे आपके साथ बैठे हैं। मुझे आप बताएं, अपने सीने पर हाथ रख, जब पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग गवर्नमेंट थी क्या हालात इस हद तक थे? जब नवाज़ शरीफ आया था पूरे पाकिस्तान में अमन था, पूरी तो हमारे देहाती इलाके में देखो, पहाड़ी इलाकों में, अभी पंजाब में पुलिस गर्दी है, सिंध में दहशत गर्दी जो है, धाड़ेल राज है, यहाँ जीना मरना हराम कर दिया है। हम 300 रुपये कमाने वाले, हम दुकान पर काम करते थे, उन्हें कहा भाई अब हमारा गुजारा नहीं है, ये गुंडे बदमाश रहते हैं, टैक्स लेने वाले PTI के बहुत सारे कारकुन ब्लैक मिलर है, सर्च करें। अब जो है ना कारोबारी को ब्लैक मेल करते हैं, लिहाजा हम अपने हकूक़ के लिए आए हैं और हमें जो कायदीन हमें हुक्म देंगे, ये आपके जो बढ़िया सवाल है ना, बढ़िया पॉलिसी, ये हमारे बुजुर्ग ही बता सकते हैं। लेकिन हम आए हैं कि गुर्बत है, महंगाई है, मुहज़्ज़ब तरीके इंसान परेशान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। पहले बताइएगा नाम क्या और किस जगह से आए? मेरा नाम मीर आरिसर है और मैं उमरकोट सिंध से आया हूँ और इस न्याजी को सिलेक्टेड को भगाने के लिए इंशाल्लाह भगा के रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो भी मसाइल इस वक्त मुल्क के, उसकी वजह ये इमरान खान की हुकूमत ही है? जी हाँ, इमरान खान की हुकूमत ही है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कितने नौजवान बेरोज़गार हुए हैं और कितने गरीबों के घर उधर तोड़ दिए हैं, जो सालों से रह रहे हैं उन लोगों के घर तोड़। अच्छा, तो आप इस आज़ादी मार्च में कब से शरीक है, कहाँ से शामिल हुए? मैं इधर से इस्लामाबाद में ही रहता हूँ, तो पीपल्स पार्टी के ऑफिस है तो उधर से, तो इधर से ही शामिल हुआ हूँ। इंशाल्लाह अभी पीपल्स पार्टी के जियाले भी शरीक होंगे अपने कायद के हुक्म पर। आज अभी बिलावल का खिताब सुनने में आया हुआ था, तो अभी इंशाल्लाह। अच्छा, तो बिलावल साहब अगर आपको हुक्म दे कि यहाँ पे बैठना है इनके लोगों के साथ, तो आप बैठने के लिए तैयार हैं इस धरने में अगर बैठना है? जी हाँ, इंशाल्लाह अगर बिलावल साहब हुक्म करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी भर इस धरने में बैठे रहेंगे और इस सिलेक्टेड को भगा कर ही रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये नाज़रीन हमारे साथ एक और भी दोस्त मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप क्या नाम है और किस जगह से हैं? मेरा नाम ज़ुबैर अहमद, मैं सात कबाल और इमरान खान से आने वाला हूँ। अच्छा, तो कब से इस धरने में शामिल हैं, कहाँ से शामिल हैं? मैं सात कबाल से और सिंध से रवाना उसके इधर इस्लामाबाद आए, रात को 3 बजे पहुँचे हैं। 3 बजे पहुँचे। तो आपको क्या लगता है हुकूमत आपकी बात मान लेगी जो मुतालबात लेके आए? इंशाअल्लाह प्यार से भी कहेंगे मानेंगे, अगर प्यार से ना
नहीं माने तो इंशाल्लाह डी चौक पे आएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कैदीन कहे तो वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी के बैठने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई किस जगह से आए और आपका ताल्लुक़ किस जमात से? भाई मैं मोमंद एजेंसी से हूँ, हमारा ताल्लुक मोमंद एजेंसी से है। किस जमात से ताल्लुक़? हमारा अवामी नेशनल पार्टी से। नेशनल पार्टी से। अच्छा, आप तो कल बहुत जल्दी यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी का काफिला पहुँच आया था। बिल्कुल, कल हमने इधर अपना पावर शो कर दिया था, तो अगले नए अमल के लिए जो मशरान कहेंगे हमारे वक्त तैयार है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो आपके मुतालबात आप लेके आएँ तो उनको मानेगी, उनको सीरियस है? कुछ हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है? मेरे हिसाब से प्रेशर नहीं, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहे हैं। इंशाल्लाह इस हुकूमत को गिरा के यहाँ से तो जाए। अगर वो सीरियस नहीं लेती तो यहाँ पे बैठने के लिए तैयार हैं, जितने दिन लग जाए? बिल्कुल, साल लग जाए इंशाल्लाह, इधर तैयार है। अच्छा, शुरू से करूँ? अच्छा, बताइए किस जगह से? जिला की मरवत से। अच्छा, आप हमें बताएं कि आप क्यों शरीक क्यों हुए? मैं इसलिए शरीक हुआ कि इस वक्त मुल्क को जिस जगह तक पहुंचा दिया गया है वो इंतहाई नाकाबिल तफहीम की जगह तक पहुंचा दिया गया है। इस हुक्मरान ने 15 महीने हुकूमत कर ली है, लेकिन कोई एक ऐसा संजीदा काम, कोई एक ऐसा डिसिप्लिन बात, कोई डिसिप्लिन राइट इसने अभी तक नहीं उठाया। अच्छा, आप ख़ुद नौजवान हैं तो हमें बताइएगा कि आप स्टूडेंट हैं मदारिस के या स्कूल के, कॉलेज के? मैं इस वक्त स्कूल का स्टूडेंट हूँ, 9th क्लास का। अच्छा, और आपका मुतालबा ये है कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे और ये जो गवर्नमेंट है इस्तीफ़ा दे? जी, हमारा मुतालबा ये है कि नाजायज़ गवर्नमेंट में जितने वफाकी वज़रा बैठे हुए ये सब अभी के अभी रिज़ाइन करे, तब तक हम इधर ही सिटिंग करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे जैसा कि एक तासुर दिया जा रहा है कि सिर्फ मदारिस के ही तालिब इल्म में, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये हमारे साथ नौजवान मौजूद है जो कि ख़ुद एक कॉलेज के स्टूडेंट है और ये हमारे साथ यहाँ पे इस धरने में शरीक है मौलाना साहब के, और इनका मुतालबा भी यही है कि इस हुकूमत को इस्तीफ़ा देना चाहिए, इमरान खान को यहाँ से जाना चाहिए। और एक जो तासुर दिया जाता था कि मदारिस के सिर्फ तालिब इल्म में, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे हर तबका जो ज़िंदगी का तबका है उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे शरीक है और वो अपने मसाइल से परेशान है, इसलिए यहाँ पे वो शरीक है। क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, हमें सबसे पहले तो बताइए आपका ताल्लुक़ किस जमात से है और किस जगह से हैं आप? मेरा ताल्लुक़ जनाब JUIF से है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है और पिंडी का मेरा रिहायशी हूँ। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके यहाँ धरने में शरीक होने का मकसद क्या है, मुतालबा क्या, तो आप क्या? मकसद ये है जी कि इन यहूदी हुक्मरानों से छुटकारा। जब से ये आए हैं हमारे मुल्क में अमन नहीं रहा, जो फाशी है वो सरेआम है, और ये लोग चाहते भी यही हैं कि फाशी सरेआम हो और सड़कों में नाच गाना हो, ठीक है। और जो मौलवी हज़रात हैं, दाढ़ी वाले हैं, वो जो है ना इनको मुल्क में नज़र ना आए, ये इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत आपके मुतालबात को लेके सीरियस है, या अभी तक तो वो कह रही है कि हमारे पर कोई भी प्रेशर नहीं है इस धरने का, तो आपको क्या लगता है वो आपके मुतालबात को संजीदा लेगी? देखें जी, ये अब उन पे डिपेंड करता है। जब बंदा बगैरत हो जाए ना तो उसकी जब अपनी इज़्ज़त नहीं रहती तो वो कहता है मेरी इज़्ज़त नहीं है तो दूसरों की भी नहीं है, तो वो बेशक न माने। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हमने जाना है तो इस्तीफ़ा लेके जाना है, इंशाल्लाह मनवा के जाएंगे इनको। कब तक जान छुड़ाएंगे ये? अच्छा, अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा दिन तक रहना पड़े तो क्या उसके लिए तैयार हैं आप लोग? इंशाल्लाह जी, 2 महीने भी रहना पड़े, 3 महीने भी रहना पड़े तो इंशाल्लाह हम रहेंगे। वो 126 दिन यहाँ पे नाच गाने के साथ रहें, यहाँ पे हम जो रहेंगे इंशाल्लाह नवाफिल के साथ, नमाज के साथ और ज़िक्र अस्कार के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन आपने इनको गुफ्तगू सुनी और इनका यही कहना है कि अगर हमें 2 महीने 3 महीने भी यहाँ पे रहना पड़े, उनके कायदीन जो भी हुक्म देंगे, उन्हें जो भी लायामल उनके लिए इख्तियार करेंगे, वो उसके लिए यहाँ पे तैयार हैं और इस जगह पे वो मौजूद है, और जो भी अगला लायामल उनकी कायदीन, उनकी क़यादत की तरफ से आएगा उसको वो मुकम्मल तौर पर पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ के जो शुरका हैं उनकी, और हमने बहुत सारे यहाँ मुख्तलिफ़ जो जमातें हैं उनके शुरका से बात की। एक यहाँ चीज़ हमने देखी है कि मुख्तलिफ़ जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके कारकुनान यहाँ पर शरीक हैं, और हमने मुख्तलिफ़ जमातों के कारकुनान से बात भी की। उन सब का यही कहना है कि जब तक उनके कायदीन हम उनको कहेंगे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे आज़ादी मार्च में। और इसके अलावा हमने यहाँ पे एक चीज़ जो देखी कि जो इस आज़ादी मार्च के इंतज़ामात हैं वो इंतहाई अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं
यानी कि जो आज़ादी मार्च की जो इंतज़ामिया उनकी तरफ से जो इंतज़ामात हैं वो बहुत अच्छे और ऐसे तरीके से यहाँ पर किए गए हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आज पहला दिन था, अभी कुछ ही देर पहले मौलाना फजल रहमान ने जो पैमरा की तरफ से और एक अनसेंसर्ड जो पाबंदी है मीडिया के ऊपर जो सेंसरशिप है उसको हटाने का भी मुतालबा किया है। इसके अलावा उन्होंने एक धमकी भी दी है कि अगर हुकूमत उनको सीरियस नहीं लेगी तो वो ये मार्च इस्लामाबाद की जो दीगर जो हसास मकामात है उधर तक फैला भी सकते हैं। ये उनकी तरफ से एक धमकी भी दी हुकूमत के लिए, लेकिन फ़िलहाल कोई बड़ा मुतालबा इस वक्त तक कायदीन की तरफ से सामने नहीं आया। जो एक नॉर्मल रूटीन की तकारीर हैं और गुफ्तगू हैं वही की जा रही हैं। तो अब आगे ये देखेंगे कि जो दिन गुजरते जाएंगे तो आज़ादी मार्च क्या सूरत इख्तियार करती है